हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ द ईथर। ईथर में दोस्तों हमने ऑलरेडी दो तीन लेक्चर कर चुके हैं। इन दैट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द सम रिएक्शन फ्रॉम द एनसीईआरटी एज वेल एज सम रिएक्शन फ्रॉम द आउट ऑफ फ्रॉम द एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी का पोर्शन नहीं है दोस्तों। अभी जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर के पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी पर्टिकुलर फॉर दिस। ये साल के लिए दोस्तों ये एनसीईआरटी का पोर्शन नहीं है। That is electrophilic substitution. Electrophilic substitution, it clearly indicates the substitution in the arene ring or aromatic ring. Suppose this is ether. In presence of ether, यहाँ पे दोस्तों हम किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं from the suitable nucleophile that is depend upon the nature of the ether. इन प्रेजेंस ऑफ ether ग्रुप हमको कौन सा सब्स्टिट्यूशन मिल सकता है? ऑर्थो, पैरा और मेटा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ठीक से देखें, अगर हम कंपेयर करें फिनॉल से, दिस इज द फिनॉल, इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन, सो रेजोनेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग हो सकता है। सिमिलरली दिस इज एरिन रिंग एंड दिस इज OR ईथर, इट मींस यहाँ पे भी वही इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पे भी दोस्तों सिमिलर रेजोनेंस हो सकता है। सो वी कैन से ऑर्थो पैरा रिप्लेसमेंट होगा, वेरी सिंपल। सो हियर यू कैन सी दैट alkoxy group OR is ortho-para directing and activates the aromatic ring towards the electrophilic substitution in the same way in phenol. Phenol की तरह ही दोस्तों यहाँ पे हो सकता है। Here you can see similar resonance. This resonance we already discussed in the phenol. Here we have electron-rich oxygen from the ether group. The electron donation toward the bond. So the total number of bond of this carbon being five. जो पॉसिबल नहीं है, सो दैट ब्रेकिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्थो प्लेस, सो electron density at the ortho place should be increased, then resonance go ahead from that electron, the another bond of this two carbon is being formed, so ये कार्बन की दोस्तों मेटा कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, so that another pi bond will break and electron goes to the para position, again increase the density as the para position, at the para position then one more dual bond is going to form it, so this carbon should be 5 valent, this is not possible, so one more pi bond is going to break and electron goes to the again ortho position. So here you can see ortho, para and ortho, at the end we will get structure, repeat structure. So यहाँ पे आपको पता चलता है that electron density is increased at the ortho and para position. So again ether is also ortho para directing group, that is clear. Then दोस्तों एनसीईआरटी में जितने दे रखे वही मैं आपको कराने जा रहा हूँ, कोई भी ऐड नहीं किया, बिकॉज ये पोर्शन ही अभी के लिए डिलीट है, अभी के लिए सिलेबस में नहीं है। सो फिर भी हम क्या करते हैं, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना देख लेते हैं। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन किस तरह से होगा? टू टाइप्स ऑफ हैलोजिनेशन, डायरेक्टली हैलोजन से हो सकता है या हाइड्रोहैलोजेनिक एसिड से हो सकता है। फिनाइल अल्काइल ईथर अंडरगो यूजुअल हैलोजिनेशन इन द बेंजीन रिंग। फॉर एग्जाम्पल एनिसोल अंडरगो, व्हाट इज एनिसोल आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सपोज दिस इज बेंजीन रिंग and this is OCH3, now this is called anisole, this is the anisole, undergoes bromination with bromine in ethanoic acid even in the absence of the ion, ion +3 कहाँ पे दोस्तों? Fe+3 में होगा, ion +3 bromide, FeBr3 I mean to say, FeBr3। It is due to the activation of benzene ring by the methoxy group, para isomer is obtained up to 90%। वहां पे दोस्तों पैरा प्रोडक्ट की मेजर होगी। Here you can see this is the anisole, benzene ring plus OCH3, which we also known as a methoxybenzene or anisole. Okay, you can see methoxybenzene or anisole. Br2 in ethanoic acid or acetic acid, or you can write like this, CH3C dual bond OH. You will get para-bromo-anisole as a major product, near about 90% and ortho-bromo-anisole as a minor product. So major minor होगा। Majority केस में यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर मिलता है, बट पर्टिकुलर इन दिस कंडीशन इथेनोइक एसिड, ये कंडीशन में दोस्तों पैरा प्रोडक्ट मेजर होगी, दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, इफ वी टॉकिंग अबाउट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, आपको क्या याद रहना चाहिए दोस्तों? फ्रीडल-क्राफ्ट में दो रिएक्शन आपको याद रहनी चाहिए, विच इज अल्काइलेशन and the acylation. In the alkylation we have to react haloalkane in presence of anhydrous
aluminum chloride. In the acylation, we have two reactant. We can use acid chloride or acid anhydride, again in presence of AlCl3, and we will get suitable products over here. So anisole undergoes the Friedel-Crafts reaction. You can see in the alkyl and acyl group are introduced at the ortho and para positions by reaction with alkyl halide. दोस्तों ये पहली कंडीशन, जब आप एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एनिसोल से जब ये रिएक्शन करते हो हेलो अल्केन की, तब ये अल्काइल ग्रुप दोस्तों कहाँ पे होगा, ortho and the para position. Similar, if we go for the acyl group, acyl halide in the presence of anhydrous aluminum chloride AlCl3, which is actually a Lewis acid or Lewis acid because of electron accept in nature as a catalyst. Here you can see this is our anisole. I repeat, this is our anisole. CH3Cl yellow alkane in presence of anhydrous AlCl3 in CH2. ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोस्तों यहाँ पे. So ऑर्थो और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे with the Cl and we will get HCl as a byproduct. This methyl group is introduced at the ortho and the para position. Here is the ortho and the para. As we discussed, para should be measured. क्वांटिटी पैरा की दोस्तों यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है, बट हम ये नहीं कह सकते 90% होगी, बट यस वी कैन से यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा होगी. दिस इज ऑर्थोमिथॉक्सी-टोल्यूइन. सर अब तक ये एनिसोल था, अभी इसको टोल्यूइन क्यों बोलते दोस्तों? यहाँ पे एक ही रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप था which is anisole, but here you can see two different reacting groups are there in which CH3 alkyl is more reactive than ether. Alkyl is more reactive than ether, so इसको प्रायोरिटी मिलेगी. So now जो दोस्तों पहले मकान मालिक था वो भी वहां पे किराएदार हो, जो किराएदार आया था उसने मकान खुद का कर लिया, वो मैन हो गया. So benzene ring plus CH3, I repeat, this is our benzene ring. With the CH3, methyl benzene is actually known as the toluene. Here you can see toluene. So 2-methoxy-toluene or ortho-methoxy-toluene, 4-methoxy-toluene or para-methoxy-toluene is the major product. Simple. I hope दोस्तों पता चला होगा. This is all about acylation. Acylation में क्या होगा दोस्तों? You can say this is CH3COCl. CH3 C dual bond OCl. यहाँ पे दोस्तों बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा, CH3CO प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल एंड Cl माइनस. ये Cl माइनस दोस्तों जो भी हाइड्रोजन फ्रॉम दी ऑर्थो पैरा होगा उसके साथ निकल के ये Cl माइनस क्या बनाएगा, HCl. So here we can write HCl. So this COCH3 group going to attach here. So COCH3 ऑर्थो एंड पैरा. अभी दोस्तों पहले हमने बात की थी that in comparison to alkyl, ether is less reactive. In comparison of ether, कीटोन इज हायर रिएक्टिव. दोस्तों ये तो एकदम ज्यादा होगा. सो ये मकान मालिक था, ये उसका खुद का प्रॉपर्टी थी, बट अब वो किराएदार है दोस्तों, ये कीटोन बनेगा मेन ग्रुप. सो दिस इज आवर कीटोन. यू कैन सी अगर नंबरिंग करना चाहो 1 and 2, 2 नंबर पे क्या है फिनाइल, सो सॉरी 1 नंबर पे फिनाइल, ये होगा 1 फिनाइल. इंटरनल नंबरिंग करो 1 and 2, 2 नंबर पे मिथॉक्सी. सो इसको आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो 1, यहाँ पे क्या होगा internal numbering 1 and 2, 2-methoxy phenyl bracket and then 1 and 2, 2 carbon, it means ethane 1 on. ये होगा दोस्तों इसका IUPAC nomenclature. Similarly यहाँ पे अगर आप करना चाहो, this is your main group, so number 1 and 2, 1 नंबर पे फिनाइल रहेंगे, उसकी इंटरनल नंबरिंग 1, 2, 3 and 4 एट दी पोजीशन 4 मिथॉक्सी. सो आप इस तरह से लिखोगे 1 और यहाँ पे होगा 4 मिथॉक्सी, बाकी का एज इट इज रहेगा दोस्तों. बट आपको पता है बेंजीन रिंग प्लस COCH3, दिस इज एक्चुअली नोन एज अ एसिटोफिनोन. इसको हम कौन से नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज अ एसिटोफिनोन. सो वी कैन राइट orthomethoxy acetophenone and the paramethoxy acetophenone as well. So now ये दोस्तों आप सबको क्लियर होगा. Then नाइट्रेशन, ये दोस्तों एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, ध्यान से. बट फिर से आपको याद रखना जितना एनसीईआरटी पोर्शन टेक्स्ट बुक टेक्सचुअल फ्रॉम द थियोरिकल कैंसिल है उतना ही उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी कैंसिल हो गए, बट फिर भी हमको सोल्व आउट एटलीस्ट करने होंगे. अगर आप लिखो चाहे ना चलेगा. That is all because of the competitive approach. Competitive में हो सकता है. Okay, sir. Nitration.
एक्चुअली HNO3 इज एबल टू मेक नाइट्रेशन। HNO3 से क्या बनेगा दोस्तों, NO2 प्लस एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड OH माइनस। ये NO2 प्लस क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे किसी भी H का रिप्लेसमेंट करेगा फ्रॉम द NO2 प्लस। NO2 प्लस H plus निकलेगा, OH minus ZH होगा, and our byproduct is H2O. So again, this is the ortho para directing group. So we will get product at the ortho and the para. Again, para is measure, ortho is nitro. इसको दोस्तों एनिसोल को एनिसोल ही बोलेंगे because in comparison to nitro, this ether group is more reactive. यहाँ पे दोस्तों हमको नाइट्रोबेंजीन ऑर्थोमिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन पैरामिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन नहीं बोल रहा है, ये राइट है। 4 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोएनिसोल 2 नाइट्रोएनिसोल और 4 and 2 नाइट्रो methoxybenzene that you can write. Clear? Then now we have some questions from the index question as well as example as well as textbook exercise. All questions are in the mixed form. Here you can see the question number 11.12. I think this is the in-text question. Write the reaction of Williamson synthesis. We have to just write the reaction of 2-ethoxy 3-methyl pentane starting from ethanol and 3-methyl pentane to all. So दोस्तों यहाँ पे जो प्रोडक्ट दे रखी है प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ 2-ethoxy 3-methyl pentane. So यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 5 कार्बन चेन है, you can see 5 कार्बन चेन, उसमें से 2 नंबर पे दोस्तों on the position 2 ethoxy is there. So this is suppose 1 and 2, 1 and 2 CH3 CHO CH2 CH3 और ये दोस्तों 1 and 2 हुआ, उसके अलावा 3 नंबर पे एक और मिथाइल है. ओके, दिस इज द मिथाइल. देन पेंटेन, सो ये हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा 1 2. ओके, मिथाइल ऑन दी नंबर 3. दोस्तों मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है दैट आई एम गोइंग टू शो यू. जस्ट सी दी करेक्शन. ओके, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, उसकी वैलेंसी भी हमको साथ में बैलेंस करती रहनी पड़ेगी. सो here you can see, suppose this is carbon number 1 and 2, 2 number पे ethoxy, this is ethoxy, then this is 3, 3 number पे एक extra methyl है. ओवरऑल कार्बन कितने हैं, पेंटेन 5, it means 1 2 3 4 and 5. क्लियर है. ये प्रोडक्ट दोस्तों बनानी है, इसके लिए हमारे पास जो दो अल्कोहल है कुछ इस तरह से, वन इज इथेनॉल एंड 2 methyl propane 2 methyl pentane 2-1. so 1 2 3, सॉरी यहाँ पे CH2 है, CHOH CH3. दिस इज 2 methyl, सॉरी दिस इज पेंटेन 2-ऑल, और पेंटेन 2-ऑल में दोस्तों 3 नंबर पे मिथाइल चाहिए. देन वी हैव टू राइट लाइक दिस. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक मिथाइल ग्रुप ऐड करना पड़ेगा. सो हियर यू कैन सी मिथाइल ग्रुप, हियर इज दिस CH3. नाउ 1 2 3 4 and 5 at the number 2, sorry at the number 3, our need is at the number 3. so मेरे को यहाँ पे फिर से कुछ चेंज करना पड़ेगा. you can see 2 नंबर पे दोस्तों यहाँ पे फिर से CH ही होगा. at the number 3 वहाँ पे हमको एक और मिथाइल ग्रुप ऐड करना पड़ेगा. so this is CH. now 1 2 and 3, 3 methyl pentane 2-ol, that is one alcohol. then ethanol is CH3 CH2OH. ये रिएक्शन से सर ये तो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे दोस्तों एक आपने पढ़ा था, यहाँ पे अल्कोक्साइड हो दोनों में से एक जगह पे और एक जगह पे हेलो एल्केन है, तब विलियम सिंथेसिस होगी. सो आपको ये डिसाइड करना है दोनों में से किसको हेलो एल्केन बनाना है और दोनों में से किसको फिनॉक्साइड. सो आपको पता होगा दोस्तों, ये फिनॉक्साइड 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो चलेगा, बट this alcohol should be 1 degree, hello alkane should be 1 degree. so ये 1 डिग्री है. so आपको क्या करना होगा, अल्टीमेटली आपको ये चेंज लाना पड़ेगा दोस्तों. इसका होना चाहिए CH3 CH2X और यहाँ पे क्या होना चाहिए CH3 CH2CH CH3 CHONA and CH3 ये होगा. उसके बाद दोस्तों ये X और Na निकलेगा, और अगर ये दोनों एडजस्ट हुए देन यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस. ये प्रोडक्ट बनेगी.
इसको ठीक से एकदम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। यहाँ पे दोस्तों कंसेप्ट समझना था, दैट्स वाई कार्बन नंबर में भी सीक्वेंस में ना लिखे हो, सॉरी नंबर सीक्वेंस में, बट राइटिंग एग्जैक्ट सीक्वेंस में ना हो। आप उसको एग्जैक्ट सीक्वेंस में करके ये प्रोडक्ट बना दोगे। दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, वन इज इथेनॉल एंड 3 मिथाइल पेंटेन टूल। इन दोनों को पर्टिकुलरली मेटल एल्कोक्साइड एंड दी हेलो अल्केन में कन्वर्ट करने के बाद ये करना है। अभी इसको कैसे हेलो अल्केन में कन्वर्ट करते हैं दैट यू ऑलरेडी नो। अभी इसको कैसे मेटल एल्कोक्साइड में, आई मीन टू से सोडियम एल्कोक्साइड में कन्वर्ट करना है दैट यू ऑलरेडी नो। सो ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखना है जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया है। देन फाइनली इन दोनों के बीच में विलियमसन सिंथेसिस होगा और यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस। सो ठीक से एकदम बढ़िया से दोस्तों लिखना है। अगर कोई दिक्कत है देन आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। वन मोर क्वेश्चन, which of the following is an appropriate set of reaction for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene and Y? ये दोनों में से मैं कौन सा सेट लूं? सपोज पहली पॉसिबिलिटी, सपोज यहाँ से N है और यहाँ से अगर Br निकले तो प्रोडक्ट क्या हो सकती है? यू कैन सी दिस इज बेंजीन, ऊपर Br और Na निकला, वहां पे क्या आएगा? OCH3 एंड NO2 इज हियर। सो ये हुआ 1-methoxy 4-nitrobenzene। दोस्तों अगर यहाँ पे देखें, दिस इज ONA एंड दिस इज Br, यहाँ पे भी Na Br निकलेगा और CH3 अगर यहाँ पे प्लेस लेता है देन योर प्रोडक्ट इज दिस। दोनों में एक ही प्रोडक्ट लगती है, बट फिर भी विच इज द वैलिड कंडीशन? कंडीशन 2 इज वैलिड। व्हाई कंडीशन 2 इज वैलिड? बिकॉज दोस्तों यहाँ पे अगर फर्स्ट कंडीशन में देखा जाए, वी हैव टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड बिटवीन कार्बन हैलोजन in the aromatic ring, which is slightly impossible in the normal condition because of the sp2 hybridization of this group as well as the resonance. But here you can see you can break down this bond easily. SN2 mechanism के लिए ये सबसे बढ़िया होगा, ये ऑलरेडी दोस्तों हमने पढ़ा है। So second condition is appropriate because here you can see metal alkoxide ले सकते हो, even you can take phenoxide also, but compulsory 1 degree halo alkane चाहिए, then you will get a better product. So condition 2 is best and the better here. Okay, we have one question from the exercise. दोस्तों exercise में actually कुछ क्वेश्चन काम के, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिसके लिए दोस्तों ज्यादा पैनिक नहीं होना है। Here you can see जनरल कंडीशन में हमको पता है दोस्तों ये रिएक्शन नहीं करता, बट HBr से HI से समाव आप रिएक्ट करवा सकते हो। HI ओके दोस्तों, HBr से तो कम ही होगा, बट फिर भी HI से अगर करना चाहे तो यहाँ पे क्या होगा आपको ये पता है। तो कल का लेक्चर आपको ठीक से देखना है, वीडियो रिवाइज करना है, देन यू हैव टू डिसाइड दैट ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये होगा, दोनों में से किसको H मिलेगा और किसको Br मिलेगा। और एडिशन इज, मैं यहाँ पे और एडिशन कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट मिले, इफ यू गोइंग टू रिएक्ट विथ 1 मोल HBr तब क्या होगा, ये दोस्तों क्वेश्चन आपको खुद से करके मेरे को पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करना है कंपलसरी। ओके, सेकंड कंडीशन यहाँ पे भी दोस्तों अगर ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहे देन वी हैव टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन विद द sp2 hybridization as well as resonance in comparison to alkyl oxygen bond. दिस इज सिमिलर, ये दोस्तों इजीली ब्रेक हो सकता है। सो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे क्या आएगा Br और H जाएगा यहाँ पे। सो यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस OH and C2H5Br। अगर दोस्तों यहाँ पे आगे आप रिएक्ट करवा सकते हो, करते हो, कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अगर ये अल्कोहल होता तो हो सकता था, अल्कोहल में ये बॉन्ड ब्रेक होके फिर से आप वहां पे हैलाइड ऐड कर सकते थे, बट इन दी फिनोल दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज द प्रोडक्ट। ये दोस्तों अभी हमने पढ़ा था इन दी एनिसोल, नाउ दिस इज फेनिटोल। यू कैन सी इथॉक्सीबेंजीन, वहां पे एनिसोल था, मिथॉक्सीबेंजीन, दिस इज फेनिटोल। Concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid clearly indicate the nitration electrophilic substitution. So OC2H5 as it is, here you can get product at the ortho as well as para, और यहाँ पे दोस्तों आपकी जो para product होगी that product your major product. So this is our major product और this is our minor product. Okay, ये क्या होगा दोस्तों, ortho nitrofenitol ये होगा, sorry this is para nitroanisole and this is ortho nitroanisole, और we can say numbering देना चाहो then ये होगा दोस्तों आपको 4 nitroanisole phenitol और ये होगा आपका 2 nitroanisole। क्लियर? then
लास्ट रिएक्शन यहाँ पे भी आपको पता है दोस्तों, अगर इस तरह की रिएक्शन हुई तो क्या होगा, ये भी थियरी में था कल के, ज्यादा स्टेबल कैटायन बने और वहां पे रिप्लेसमेंट हो, ये पॉसिबल है। सो यहाँ पे दोस्तों अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है and this become tertiary cation which is more stable, SN1 replacement होगा। ये दोस्तों कल ही हमने पढ़ा था CH3 1, CH3 2 and CH3 3। उसके साथ दिस इज द कैटायन, सो दिस शुड बी कैटायन। सो यहाँ पे आयोडीन आके अटैच हो जाए, ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और ये क्या बनेगा C2H5OH। अगर आप यहाँ पे फिर से HI से रिएक्शन करते हो देन इसका भी आप रिप्लेसमेंट कर पाओगे। ठीक है, सो ये रिएक्शन दोस्तों ऑलरेडी हमने कर ली है फ्रॉम द एक्सरसाइज। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वो सिलेबस का पोर्शन नहीं है, बट फिर भी आपको याद रखना है। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, ये दोस्तों आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आई रिपीट, इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम दोस्तों, एनसीईआरटी का पोर्शन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस एंड द अनसिमेट्रिकल ईथर, दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपको अगर ठीक से देखा जाए तो एक जैसे लग रहे हैं। फ्रॉम द डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल ईथर मेकिंग आपको क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल ईथर। फ्रॉम द विलियमसन सिंथेसिस यू विल गेट अनसिमेट्रिकल ईथर। सो इसका भी आंसर दोस्तों आपके पास ऑलरेडी है, जस्ट रिवाइज योर टेक्स्ट बुक, रिवाइज योर नोट्स एंड गिव द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Williamson synthesis, ether synthesis as well as synthesis for the unsymmetrical ether, both are equal। आप दोस्तों ये कर सकते हो। Just for an example, suppose एक एग्जांपल है दोस्तों हमारे पास, this is the sodium phenoxide and this is the chlorobenzene। So यहाँ पे दोस्तों विलियमसन सिंथेसिस होगा, ये NaCl निकलेगा and you will get anisole or we can say methoxybenzene। ओके, सो ये मैकेनिज्म आपको दोस्तों पता ही है। ओके, ये दोस्तों एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन राइटिंग में आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन मेनी मोर एमसीक्यू शुड बी पॉसिबल, वो भी दोस्तों प्रॉपर थिंकिंग से आप सॉल्व कर सकते हो। गिव द रीजन हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन। अगर दोस्तों ये साल की एनसीईआरटी की बात करें, दिस इज नॉट अ पार्ट, ये पार्ट नहीं है, क्यों, बिकॉज ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हमने कल के लेक्चर में देखा था, नॉट द पार्ट ऑफ द बुक, बट एमसीक्यू लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इथेनॉल की बात करें, दिस इज CH3CH2OH, और उसके साथ दोस्तों मिथॉक्सीमीथेन की बात करें, हियर यू कैन सी CH3OCH3। यहाँ पे दोस्तों इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड आगे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बट स्टिल intermolecular H bond is not possible, only London force is there और London force attraction is there। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड होगा, सो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, सो दैट आई रिपीट, सो दैट द ओवरऑल boiling point and the melting point of the alcohol with the similar molecular weighted ether alcohol का ज्यादा होगा। कल के लेक्चर में दोस्तों ये थियरी पढ़ी थी, को पता होगा। Now we have some questions from the exercise दोस्तों, यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है, इथर से भी हो सकते हैं, अल्कोहल फिनॉल से भी हो सकते हैं, आउट ऑफ द एनसीईआरटी भी है और कुछ एनसीईआरटी वाले भी है। बट दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कल इंडिकेशन दे रहा हूँ, इन योर होमवर्क आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको खुद से करने हैं। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। ये यहाँ पे 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन आपको बनाना है, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो क्या करना पड़ेगा, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 ये बनाना फ्रॉम द विलियमसन सिंथेसिस। अगर डिहाइड्रेशन होता तो भी ये पॉसिबल है बिकॉज सिमेट्रिकल ईथर। यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 is sodium propoxide and 1 is bromo or chloropropane, ब्रोमो और क्लोरोप्रोपेन विद सोडियम प्रोपोक्साइड, यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस। उसी तरह से इथॉक्सीबेंजीन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी इथेन, ये सभी प्रोडक्ट आप इजीली बना पाओगे। और ये दोस्तों पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी है, क्वेश्चन राइटिंग में भी हो सकता है। 11.25 illustrate with example the limitation of Williamson synthesis for the preparation of certain types of ethers।
दोस्तों ये क्वेश्चन की बात आगे मेरे ख्याल से हो चुकी है, सो मैं इसको डायरेक्टली आगे बढ़ा रहा हूँ। ओके, how is the propoxypropan synthesized from the propan 1 wall with the mechanism? ये भी दोस्तों हो चुका है, this both question already attended. And 11.27, preparation of ether by the acid dehydration of secondary or tertiary alcohol is not suitable. A method, give reason. दोस्तों इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, that you have, क्यों सेकेंडरी और टर्सरी में ये पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ऑफ हायर स्टेबल कार्बोकेटाइन, आपको पता ही है। और वहां पे दोस्तों इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन की जगह पे कई बार क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा एंड यू विल गेट एल्कीन इन प्लेस ऑफ ईथर। सो ये क्वेश्चन भी दोस्तों विद द डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल और मेकिंग ऑफ द ईथर हो चुका है, बट फिर भी आपको फिर से ये रिवाइज करना है। देन 11.28, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड विथ, आपको अलग अलग रिएक्शन। देन 1 प्रोपॉक्सीप्रोपेन, दिस इज 1 प्रोपॉक्सीप्रोपेन। अगर दोस्तों आप यहाँ पे HI से रिएक्शन करवाते हो, क्या होगा, दोनों में से किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो, बोथ आर इक्वल। सो दिस becomes CH3CH2CH2I and this becomes CH3CH2CH2OH. Then if you are going to adding one more mole of the HI, then you will get again iodopropan. So at the end अगर 2 HI लेके काम करते हो, you will get 2 moles of iodopropan plus H2O. सो बाकी के मिथॉक्सी बेंजीन, बेंजाइल, इथाइल ईथर, ये सभी के लिए सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आपको वीडियो पॉज करना है, आगे के 1-2 वीडियो देखना है एंड यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। अगर नहीं मिलता है देन यू कैन कांटेक्ट मी। 11.25, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन एराइल अल्काइल ईथर द alkoxy group activates the benzene ring toward the electrophilic substitution. It directs the incoming substitution to orthopara position in the benzene ring. This is all because of higher electron density at ortho and para. अभी आपको ये बताना है ortho para पे क्यों है, through the resonance. आज ही के लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था। You have to show that why electron density at the ortho and para position should be increased in comparison to meta. Write the mechanism of the reaction of HI with the methoxymethane. दोस्तों ROR डैश से HI की रिएक्शन विद द मैकेनिज्म 2 मोल, एक्चुअली हमने लिखे हैं 3 स्टेप, होते हैं 4 स्टेप। कल के लेक्चर में हुआ था या सेकंड लास्ट लेक्चर में, पता होगा दोस्तों, तो आई होप ये कर पाओगे आप। 11.31, write the equation of the following reactions. Friedel-Crafts reaction and alkylation of the anisole आज के लेक्चर में हुआ, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल आज के लेक्चर में हुआ, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन द इथेनोइक्विडियम आज के लेक्चर में हुआ, अगेन फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन इन एनिसोल, अगेन ये भी दोस्तों हमने आज ही के लेक्चर में कंप्लीट किया था। ओके, दिस 2 क्वेश्चन ये दोस्तों आपको खुद से ही करने हैं, प्रॉपर होमवर्क है। आगे के क्वेश्चन में मैंने हिंट दी है और ये होमवर्क एज अर्ली एज पॉसिबल सबमिट करवाना है, ठीक है। इन दी नेक्स्ट एंड दी लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर हम दोस्तों कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।